Hello, everyone. Thank you for joining us on time. By the time other people join us, let's just have a look at our video, which gives a little bit of context what we do at Mukta Mental Health Help. मेरी उम्र ही क्या है जो मुझे टीबी हो गया। मेरी ड्रीम्स का अब क्या होगा? और अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पेरेंट्स का सहारा कौन बनेगा? मेरे पति को गुस्सा बहुत आता है और गुस्से में वो बहुत मारते हैं। मेरे छोटे बच्चे हैं दो, कोई और सहारा नहीं है। मेरी क्या गलती है? मैं इससे बाहर कैसे निकलूं? I don't know how much longer I can keep pretending everything is okay. The weight of losing her is crushing me, suffocating any ounce of hope I once had. Is this the end of me? Mukta Mental Health Helpline has had over 3,500 sessions with clients from all over the country in three languages: Hindi, English, and Marathi. We offer a non judgmental, accessible, anonymous, and safe space for every single one of our callers. We also provide our clients with an option to request a callback from the helpline, which can be helpful to those who do not have the balance to call or for some reason we are not able to connect. Around 1,100 calls were possible due to our very unique callback service. We have been able to reach daily wage workers, laborers, tailors, bus drivers, farmers, for whom even seeking support for mental health is a huge step. We have been able to provide support to clients from the ages of 13 to 93. In a year, we have collaborated with 16 organizations and had 30 field sessions with organizations that work at the grassroots level for Warkaris, economically vulnerable populations, sex workers, and migrant populations in areas like nutrition, health, education, sanitation, safety, and documentation. We have also organized Pune's first mental health conference for students and young professionals, which was an absolute success with 225 participants. Since COVID, there have been many conversations about mental health and well being, but it is not easy accessing care and help. In India, most of us go to psychiatrists and therapists, but only when the pain becomes very unbearable and very high. Time, money, support systems, and resources to recover from that. Will there ever be that many psychiatrists and therapists? Will there be that many resources and services that individuals can access before the stress becomes too high? Helpline is a space for all those individuals who are struggling, who don't know what to do, who feel lost, but they don't have the means to access private therapy sessions. But at the same time, their life is hanging on the fact that they need someone to listen to them. We are here for you if you're feeling stressed, if you're feeling low, you're feeling lost, if you're feeling anxiety, depression. We are here to create that safe space for you. We need the funds and resources to be able to provide the best possible service through our trained team of psychologists who take sessions of about 40 to 45 minutes on our helpline. Had the chance to think about their own mental health or even think about counseling. We want to reach those people and create a space for them as well. To ensure that we reach them, we connect with NGOs who work in cities, in slum areas, and also with governmental institutions like Anganwadi and bus depots. We also use social media like Instagram, Facebook, and WhatsApp to reach these populations who go through a lot constantly but have never had the opportunity to seek help for their mental health. We urge you to come along with us on this journey by showing your generous support and helping us reach our goal. Donate now. Hello, everyone. Thank you for joining us today for the session. I would like to start with my introduction. My name is Shubham. I have been working with Mukta Charitable Foundation since over a year as a mental health associate. And just to start with, I would like to give just 2 minutes intro about the foundation, and we can go ahead with the session ahead. MCF has been working since 2005, and our primarily work has been in physical well-being and uh,
Yeah, we have successfully been running Samvad helpline, which provides information related to HIV, AIDS, HBC, and TB, and other sexually transmitted diseases. We have been able to support over 5 lakh of people through this helpline, and we recently started Mukta Mental Health Helpline 2 years. It's been 2 years actually. Since 2023, we have been able to support around 11,000 people who are in distress psychologically, and uh, our trained counselors who are qualified psychologists provide this telephonic counseling sessions on the helpline. That's about the MCF, and I would like to go to our uh, facilitator for the day. Divya Hire has been a very special connection to Mukta Mental Health Helpline because she has been the first batch of counselors when the helpline has started. During her tenure, she also did uh, capacity building for our Samvad helpline team members. And she currently is running her own private practice as a psychologist. And regards to her education, she has done her MSc in clinical psychology and technology from University of Twente, which is in Netherlands. And I'm very glad to have her here. Actually, our whole team is glad to have her here because how graciously when we reached out to her for the session, she agreed to do this. So we all are looking forward to the session, Divya. Over to you. Thank you so much. Just before that, I'm just gonna take one more minute. Um, uh, just few things to remember since the topic is quite sensitive in its own nature. So let's be mindful of each other's privacy. Let's maintain the safe space that we stand for and avoid interrupting each other during the session when anyone is speaking. And there will be a time where we will be opening the platform for questions and answers or discussions. So stay mindful of that. And one more thing, session is already being recorded. So if you have any reservations around, like if you're sharing any personal details, you can just, before sharing that, you can say that you would not like this to be a part of the final recording. So that can be edited out before we post it on the our YouTube platform. Thank you, everyone. Yes, Divya. Thank you so much, Shubham, for such a warm welcome. Can we go to the previous slide? Thank you. So before we start with our today's discussion, मैं चाहूंगी कि मैं सबसे पूछूं कि सभी लोग कौन से लैंग्वेज में कंफर्टेबल रहेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। तो क्या आप जल्दी से चैट बॉक्स में डाल सकते कि आप सभी कौन से लैंग्वेज में कंफर्टेबल रहेंगे ये डिस्कशन करना? हिंदी। हिंदी, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज इज फाइन। हिंदी, हिंदी, हिंदी। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि मिक्सचर ऑफ हिंदी और इंग्लिश ये दोनों लैंग्वेज ज़्यादा दिख के आ रहे हैं। सो विल मेक श्योर दैट वी गो बैक एंड फोर्थ इन दिस लैंग्वेज। सो एज यू कैन सी आज का टॉपिक है विमेन। जैसे कि मार्च में इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसी चीज़ को लेकर हमने सोचा कि चलो आज का डिस्कशन हम उस पे रखेंगे, स्पेशली रिलेटेड टू पावर और एवरीडे एक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस। अभी ये दोनों चीज़ें और ये दोनों वर्ड्स काफ़ी हैवी लग रही होंगी, बट ये सेशन में वी विल ट्राई टू ब्रेक इट डाउन एंड अंडरस्टैंड व्हाट इट रियली मीन्स बाय पावर। एंड मैंने एक शॉर्ट फिल्म भी शॉर्टलिस्ट की है जो आगे के स्लाइड्स में विल बी प्लेइंग इट। एंड बेस्ड ऑन दैट विल ट्राई टू रिकग्नाइज कि हमारे आसपास की महिलाएं या फिर हम खुद हमने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है क्या हमारे सोसाइटी में, और हमारा एक्सपीरियंस कैसे रहा है उस चीज़ों को लेकर, स्पेशली जब रेजिस्टेंस की बात आती है, विरोध की बात आती है। एंड सेकेंडली जब हम विरोध करते हैं तो उसका मानसिक, शारीरिक, उसका क्या असर हो सकता है, अच्छा बुरा दोनों, उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसी के साथ एंड में विल ट्राई टू मेक अ प्रॉमिस, नॉट इवन ट्राई, विल मेक श्योर कि हम छोटा या बड़ा कोई तो एक प्रॉमिस बिल्कुल करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन वंस वी
understand the today's topic much better from everyone's perspective. With that being said, uh, let's go to the next slide. तो जब मैंने पावर की बात की, आपका सबसे पहले क्या आपके दिमाग में आया? व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट दैट केम टू यू व्हेन आई स्पोक अबाउट पावर? आप अनम्यूट भी करके बोल सकते हैं, चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। एनीथिंग दैट इज कंफर्टेबल फॉर यू। समथिंग स्ट्रॉन्ग, ओके। एंड व्हाट एल्स? फियर, कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसके पास पैसा होता है उसके पास पावर होती है। यस। कंट्रोल, आई कैन सी 2 लोगों ने कंट्रोल कहा है चैट बॉक्स में, इंटरेस्टिंग। आप बिल्कुल अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, मैं देख पा रही हूँ कि सभी ने कैमरा ऑन नहीं किया है। क्योंकि ये सेशन मोर डिस्कशन बेस्ड है, तो अगर आप सभी कंफर्टेबल है तो क्या आपका कैमरा आप शुरू कर सकते हैं? ताकि मैं आपको देख पाऊँ और अच्छी तरीके से समझ पाऊँ कि क्या किस तरीके से हम सबको ये टॉपिक फ़ील हो रहा है, या फिर हम क्या टेक अवे करने की कोशिश कर रहे हैं। To control emotions and express in decent manner. ओके, ओके। और अगर मैं आपसे सभी से पूछूं कि ठीक है, पावर यानी कि पैसा या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग, कंट्रोल या फिर फियर जो दिखा सकते हैं उस उनके पास पावर होता है। तो हु होल्ड्स पावर? आपकी आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि किसके पास पावर होता है? किस तरह के लोगों के पास पावर होता है? एल्डर्स, ओके। हेड ऑफ द फैमिली, ओके। इकोनॉमिकली वेल ऑफ, गवर्नमेंट। हम्म। और जब हम हेड ऑफ द फैमिली के बारे में सोचते हैं, गवर्नमेंट के बारे में सोचते हैं, इकोनॉमिकली वेल ऑफ के बारे में सोचते हैं, तो किस प्रकार का जेंडर हमारे दिमाग में ज्यादा आता है? मेन, ओके। मेल, पर्सन हु अर्न्स एंड हु also also people with self respect, ओके। मैं देख पा रही हूँ कि लीडर्स, पॉलिटिशियंस, पीपल विथ मनी, पीपल हु रिस्पेक्ट देमसेल्व्स, ये ज़्यादा दिख के आ रहा है। और ऐसे कौन से लोग हैं जिनके पास पावर नहीं होता है सोसाइटी में? आपको क्या लगता है? आपको सभी को क्या लगता है? यस, पावरलेस, लो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ओके। ऐसे कौन से लोग हैं जिनको पावरलेस महसूस हो सकता है सोसाइटी में? माइनॉरिटीज, बहुजन, औरत, बच्चे, डिपेंडेंट पीपल, इमोशनली, फाइनेंशियली। हम्म। विमेन, ST, SC, होमलेस, क्वियर, स्पेक्ट्रम, चिल्ड्रन, डिसेबल्ड, ओके। आई कैन सी कि हम काफ़ी माइनॉरिटीज़ की ज़्यादा मेंशन कर रहे हैं। एंड आई एंड आई वंडर कि ये कौन डिसाइड करता है कि पावर इनको मिलेगा ज़्यादा और इनको नहीं मिलेगा?
आपको क्या लगता है कि ये कौन डिसाइड करता है? सोसाइटी। सोसाइटी काफ़ी काफ़ी ये बहुत बड़ा टर्म हो जाएगा। हाउ अबाउट वी बी मोर स्पेसिफिक? हम सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस अलग-अलग रहे होंगे। तो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि आपके लिए आपका पावर किसने डिसाइड किया है? कि आप पावरलेस है या फिर आपके पास पावर है? मेंटालिटी, men themselves from centuries. Okay. Okay. Power that person has related to money. Okay. जो लोग सदियों से ये पावर होल्ड करते हैं और अब ऐसे लगता है हम खुद ही कभी-कभी सोचते हैं हमारे पास पावर नहीं है। Hmm. Very reflective. Traditional environment. Okay. और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो जो चीज़ें हमें पावर महसूस कराती है या पावरफुल महसूस कराती है, वो यूजुअली है कि कंट्रोल करना, पैसे, फ़ेम या फिर ऐसी पोज़ीशन होल्ड करना, जिससे आपके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर आप कंट्रोल रख पाएँ सोसाइटी में। यानी कि ऐसी चीज़ें जो जो विज़िबल है। तो क्या आपको लगता है कि पावर हमेशा विज़िबल होता है? क्योंकि ये हम देख पा रहे हैं ना फिज़िकली या फिर इवन विजुअली हम समझ सकते हैं कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट ऐसा हो सकता है। पर क्या हमेशा पावर विजिबल होता है? लैक ऑफ इमोशनल स्ट्रेंथ मेक्स यू फील वीक एंड पावरलेस विथ लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके। हमें बड़ा ही एक सोच से किया जाता है या और वो किस प्रकार की सोच है समिता जी? अगर आप सभी को बता पाए थोड़ा। डे टू डे सिचुएशन में दिखाता है। यस, दैट इज़ सो ट्रू। ये सेशन उसी के लिए है कि ये डे टू डे सिचुएशन में किस प्रकार का पावर हम महिलाएं कैसे दिखा सकते हैं, दिखाते आ रहे हैं। हाँ। हम्म, हमें ऐसे बड़ा किया जाता है जैसे बचपन से ही हमें लेडीज को मतलब यही करना है, घर का काम करना है, बड़ों की बातें सुननी है, अगर जी। कोई कुछ बोलता है तो चुपचाप रहना है। तो मतलब एक सदाचारी सुसंस्कृत गृहिणी म्हणून तुम्ही हम्म। जो काम कर रहे हैं, जी। मतलब उसमें आपकी आइडेंटिटी बहुत अच्छी माँ, अच्छी बेटी और अच्छी बहू होनी चाहिए। तो उसमें हम्म। बस वैसे उसको बड़ा किया जाता है। और घर के काम करना, हम्म। जो भी संस्कृति है उसको बच्चों को उसी वो ही सिखाती है, अपने बच्चों आगे फॉरवर्ड वही करती है ना। तो एक हम्म। फ्रेम में उसको फिट किया जाता है कि इसी फ्रेम में रहना है, इसके बाहर नहीं जाना है। यस। यस। और उसी कारण वो जो लोग हाँ, में वो बक्से में फिट करने की कोशिश करते हैं उनके पास पावर आती है, आती वो है। हमें नीड आती है। हम्म। यस। और उसका उसको एहसास भी नहीं होता है क्योंकि सबको खुश करने के इसमें उसको पता हम्म। ही नहीं चलता है कि वो क्या कर रही है। यस। वो इतनी छोटी छोटी चीजों में होता है कि वो हमें भी समझ नहीं आता है कि ये हमारे साथ। हाँ, और हम क्या हो जब रहा है। देखते हैं आसपास की सारी औरतें वही कर रही है तो शायद ये गलत ना हो। तो हम्म। हमें भी लगता है कि शायद हमने ये कोशिश करनी चाहिए, भले अंदर ही हम्म। अंदर हमारी हमारी मानसिक या फिर शारीरिक चीजें बोल रही है कि कुछ तो गलत हो रहा है, पर काफी बार हमें वो समझ नहीं आता है कि क्या गलत हो रहा है। क्योंकि ऐसा चलता है तो चलता है, हम्म। ये सब चलता है। यस। चलता है। ये काफी ये काफी हाँ। समझना है, बट क्या ये चलना चाहिए? ये एक क्वेश्चन है जो बार बार हमने ये पूछना चाहिए ये सेशन में कंटिन्यूअसली खुद को कि ये चलना चाहिए या नहीं। और काफी छोटी छोटी वे में महिलाएं भी पावर दिखाती है, जो इसमें हम हम्म। हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे डे टू डे लाइफ में। थैंक यू स्मिता जी। थैंक यू। यहाँ पे मैं कमेंट्स देख पा रही हूँ कि patriarchy not too smart also have seen elders threaten a woman for being too smart. Uh, okay, all right.
हाउ अबाउट वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड मैं सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि अगर आप ये 2 इमेजेस देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि किसके पास पावर है? लेफ्ट, ओके। लेफ्ट इज़ अ वुमन हू इज़ अ जज, तो वो थोड़ा क्लियर कर लेती हूँ मैं, अगर इमेज में कुछ कन्फ्यूजन हो तो। बोथ, ओके। सेकंड, फर्स्ट, हुँ, ओके। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी के लोग क्या सोचते हैं? मैं देख पा रही हूँ कि 20 प्लस लोगों ने जॉइन किया है, तो मैं चाहूँगी कि हम ये डिस्कशन में थोड़ा कंट्रीब्यूट करें। यहाँ पे कोई सही गलत ऐसा नहीं है। बोथ, ओके। और हम जब बोथ की बात करते हैं, तो मैं आपसे और एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि किसके पास ज़्यादा पावर है? ऐसे आपको लगता है सभी को? Both might be holding power in different aspects. Judge seems to be educated. I guess both, but primarily one, the first one. Okay. मैं देख पा रही हूँ कि काफी लोग मैसेजेस डाल रहे हैं. How about we unmute and speak to each other? जिसके पास ज्यादा पैसा है वही सबको कंट्रोल करता है. तो सतीश जी, आपके हिसाब से पैसा किसके पास ज्यादा है अभी ये दोनों इमेजेस में से? आई कैन सी कि काफ़ी लोगों ने जज सिलेक्ट किया है, कुछ-कुछ लोगों ने बोथ भी किया है और काफ़ी कम ओके बिज़नेसमैन, पॉलिटिशियन ओके। और कुछ-कुछ लोगों ने सेकंड इमेज भी कहा है बट दे आर वेरी लेस इन नंबर। सो द पीपल हू सिलेक्टेड द सेकंड इमेज वुड यू शेयर विथ ऑल ऑफ अस कि आपने सेकंड इमेज क्यों कहा कि उनके पास पावर ज़्यादा है या फिर उनके पास भी पावर है? Housewives have more power. Okay. Unity has more power. Yes, Dhriti. You're on mute. सॉरी Yeah. मैंने सेकंड इमेज चूज किया क्योंकि आई थिंक सब लोग एक साथ हैं Hmm. एंड पावर मैं ज्यादा जस्ट लाइफ के कंट्रोल के एंगल से सोच रही हूँ, मे बी नॉट फाइनेंशियल। और जो Hmm. पहले वाले एडवोकेट है वो पता नहीं, शायद मे बी उनके पास भी इनहेरेंटली मतलब जो पोजीशन में है उसके हिसाब से पावर हो सकता है, बट Hmm. कितना वो यूज कर पा रहे हैं पावर डिसीजन मेकिंग में ये कोर्ट ऑफ लॉ में, आई एम नॉट श्योर। Okay. तो आप कहना चाहते हैं कि जो सेकंड इमेज है उसमें ज्यादा कलेक्टिव एक्शन ये लेते हुए देख रहे हैं. देयर इज लाइक अ टीम एफर्ट. um okay. Sunil ji, sense of power comes from getting recognized, being loved, confidence, ability to influence, and having control over emotions and competence. Yes, definitely. Could be as well, but especially when it comes to the context of women और महिलाओं का कैसा एक्सपीरियंस रहा है सोसाइटी में, उसको थोड़ा मैं अभी नैरो डाउन करना चाहूँगी। हमने पावर की बात की, काफ़ी ऐसे वर्ड्स आए हैं, पॉपअप हुए हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे थोड़े समय में। बट मैं देख पा रही हूँ कि अ लॉट ऑफ पीपल डिड चूज़ द फर्स्ट image because we are able to see, it's visible to us that she might have more power, she has more authority. बट एट टाइम्स हम ये काफ़ी बार ओवरलुक कर देते हैं कि पावर ये इनविजिबल भी हो सकता है। पावर इसमें भी आता है कि हम निगोशिएट कर पा रहे हैं, हम में रेजिलियंस है, हम कलेक्टिव एक्शन ले पा रहे हैं एज अ ग्रुप। फॉर एग्जांपल अभी ये सारी महिलाएं साथ में मिलकर डिसाइड कर रही है, शायद वो वेंडर्स हो सकते हैं, वो डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ हमें हमारी जो प्राइजेस है उन्हें बढ़ानी है।
और वो सारी महिलाएं उनके घरों में उतना ही ज्यादा और अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाए। बचत गट, एग्जैक्टली। तो काफी बार ये चीजें हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, बट मेरा ये भी कहना है कि क्यों ना हम पावर को कलेक्टिव एक्शन, निगोशिएशन, रेजिलियंस, इन सारे वर्ड्स के साथ भी रिकॉग्नाइज करना शुरू करें। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, शुभम। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, काफी सारा मतलब जब पावर आता है तो ये वर्ड्स बिल्कुल ही आते हैं, लीडरशिप, कंट्रोल, डोमिनेंस। बल्कि जब मुझे बताया गया था कि ये सेशन शायद हिंदी में ज़्यादा हमें कंडक्ट करना पड़े, तो मैंने गूगल किया पावर को हिंदी में क्या कहते हैं, और इतने सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स दिख के आए। मैं कुछ रीड करना चाहूंगी। सत्ता, शक्ति, अधिकार, बल, वश, ताकत, शासन, जोर, ये सारे वर्ड्स दिख के आते हैं। पर क्या हम पावर को कभी, कलेक्टिव एक्शन का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव एक्शन का मतलब ये होता है कि हम सारे लोग मिलके एक खुद का भला करने की कोई एक्शन करें, खुद के लिए कुछ अच्छा करने की एक्शन करें, निगोशिएशन करें, तो उसको एक कलेक्टिव एक्शन कह सकते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर कोई कुछ सजेस्ट करना चाहेगा? जब हम कलेक्टिव एक्शन बोलते हैं तो हम डायरेक्टली राइट्स के बारे में सोचते हैं, बट हाँ, जैसे कि कुछ लोगों ने डाला है अभी चैट बॉक्स में, बट उसके अलावा कलेक्टिव एक्शन और क्या हो सकता है? इंक्लूसिविटी, मराठा आंदोलन, स्पोर्ट्स, यस, ऑफ कोर्स। सारी महिलाएं साथ में मिलकर स्पोर्ट्स कर रही है, ऑफ कोर्स कलेक्टिव एक्शन हो सकता है। गणेश चतुर्थी के डोनेशन, यस। Is it basically like people coming together and moving towards one direction? Is that what collective यस, action? यस, बिल्कुल। बचत गट is a very nice example given by Shubham. That could be it. So like coming back to what all can power look like, हम काफी बार कंट्रोल, लीडरशिप, डोमिनेंस की बात करते हैं, बट स्पेशली व्हेन इट कम्स टू women in our community, we don't look at power to choose, या फिर power to have access, या फिर the power to resist or influence. फॉर एग्जाम्पल अभी हम पावर टू चूज की बात करें, अभी ये जो एग्जाम्पल्स की मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ, ये काफी फाउंडेशनल लेवल एग्जाम्पल्स है। पर सभी ने अभी अलग अलग एक्सपीरियंसेस की होंगी, मेरे एक्सपीरियंसेस अलग होंगे, बट मैं चाहती थी कि हमें एक रिलेटेबल एग्जाम्पल मिले, ताकि हम बाकी के एग्जाम्पल्स को रिलेट कर पाए कि हाँ ये भी चीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल पावर टू चूज, अभी आप ये फर्स्ट इमेज देख सकते हैं कि एक लड़की ने वो टॉप पकड़ा है, उनका पावर टू चूज, यहाँ पे ये हो रहा है कि शी इज चूजिंग व्हाट टू वेयर, but then it can also trickle down to what kind of job you would like to have. क्या आपको बच्चे कैसे पैदा करने हैं, या फिर किस तरीके से उन्हें बड़ा करना है, या फिर उनको बच्चे पैदा नहीं करना है या नहीं करना है। um, यहाँ तक कि ये मैं सभी से पूछना चाहूंगी कि ये जो चॉइस होता है, ये चॉइस करने का पावर क्या कभी महिलाओं के पास होता है? ये हमने थोड़ा सोचना चाहिए। नो। और काफी बार ऐसे भी लगता है कि हाँ, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। पर जब कोई महिला वो एक चॉइस कर पाती है, क्या हम उसको पावर की तरह देख पाते हैं? अगेन नो, एग्जैक्टली। क्योंकि हमारा सोसाइटल स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि ये चीजें अनदेखी हो जाती है, समझ नहीं आता है काफी बार कि ये हो रहा है। और जब बात करते हैं कि पावर टू हैव एक्सेस, यहाँ पे आप देख पा रहे कि
यहाँ पे एक छोटी बच्ची का ये है, मतलब एक साइड पे एक बच्ची की शादी हो जा रही है और एक साइड पे वो बच्ची कंटिन्यू कर पा रही है एजुकेशन। अभी ये एग्जाम्पल आपको लगता होगा कि काफी आउटडेटेड है, but according to the data, I mean, the data is not precise and transparent or updated. Again, that's also very ironic when it comes to data related to women. But there's almost 37% um जो बच्चियां होती है स्कूल में, वो प्यूबर्टी जब हिट करती है, दे आर आस्क्ड टू ड्रॉप आउट। तो वो उनका एक एजुकेशन तक कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो again, having access not just to education, but to also family, culture, financial stability, इसके बारे में भी काफी कुछ डिक्टेट किया जाता है सोसाइटी में। पर जब एक वुमेन उस चीज को रेजिस्ट करना चाहती है, I knew someone like that, exactly. I want you all to think about someone like that around you, or even ourselves. और जब वो एक वुमेन वो उस चीज को रेजिस्ट करने की पूरी कोशिश करती है या करना चाहती है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं थर्ड इमेज में, किसी ने तो इस पे स्क्रिबल किया है, क्या सभी को इमेज दिख पा रहा है? कोई नहीं, कोई बात नहीं। पर ये जो इमेज है जहाँ पे मतलब ये थर्ड इमेज देख के तो मतलब फर्स्ट थॉट ये आता है कि कितना अनसेफ है ये गली। बट ये गली में देख पा रहे कि ये बहुत ही सुनसान है, अब थोड़ा रात हो चुका है, लेट हो चुका है, और कॉर्नर्स पे आपको सिर्फ और सिर्फ आदमी दिख रहे हैं। तो why can't we look at it as this is an act of power from that woman, right? बिकॉज वो रेजिस्ट कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं कि नहीं, 9 के बाद मैं घर क्यों रहूं? अगर मुझे बाहर जाने से थोड़ा फ्रेश महसूस होता है, ट्रैफिक कम हो जाती है, मैं ज्यादा फ्रीली चल पाती हूँ, घूम पाती हूँ, या फिर शांत हो जाता है सब जगह, या फिर मेरा कुछ सामान रह गया, मुझे लेने जाना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। पर हमें कितने लोगों ने कहा होगा कि नहीं, बहुत लेट हो चुका है, अभी तुम ये कल करो। और क्या आपने ये आपके अदर मेल बॉडीड इंडिविजुअल्स या फिर बाकी के लोग फैमिली के सदस्यों के साथ ये होते हुए देखा है? मम्मी हमेशा, एग्जैक्टली। तो ये जो हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, यही है कि हमें एक, जैसे स्मिता जी कह रही थी कि एक बक्सा दिया है, उसी में ही रहना है, उसके आगे आप बढ़ नहीं सकते, निकल नहीं सकते, इतना ही करना है। पर क्या हम धीरे धीरे वो रेजिस्ट कर सकते हैं, स्पेस और बड़ा कर सकते हैं? विरोध कर सकते कि नहीं, दिस इज नॉट इट, आई वांट मोर। और जब वो महिलाएं करती है सोसाइटी में, हम किस प्रकार का रिएक्शन देते हैं? ये काफी इंटरेस्टिंगली एक शॉर्ट फिल्म है जूस करके, जो हम अभी नेक्स्ट प्ले करने वाले हैं। मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग वो देखें, और आपकी जो भी ऑब्जर्वेशंस है वो प्लीज फ्रीली डिस्कस कीजिए उसके बाद। या ओके। मेरा सिर्फ सभी से निवेदन है, दिस नॉट श्योर हाउ लॉन्ग दिस फिल्म विल गो ऑन, बट बने रहिए हमारे साथ, ठीक है? Message that resonated. I think, however, that this business about she was not likable. This thing that you say only about tough women that don't conform to a kind of feminine stereotype, and Hillary Clinton did not conform. So isn't that part of the reason? गुड वन। अरे जिस दिन से वो आई है ऑफिस सिस्टमाइज्ड हो गया। अरे छोड़िए, कहाँ का सिस्टम? अरे सब कुछ झटपट हो रहा है, देखिए ना। अरे सुनिए तो सही, 1 घंटा इत्मीनान से बैठ के मैडम को सब समझाया, बच्चे की तरह, सब बढ़िया। बात खत्म हुई तो तपाक से बोलते ईमेल पे सब भेज दो। अरे इसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे सर भरना गया हमारा। भाई साहब, वैसे एक बात बताइए,
आपको तकलीफ किससे है, ईमेल से या फीमेल से? भाभी डोंट माइंड। सुनिए खान साहब, तकलीफ तो जबरदस्ती के चोंचले से है। हालांकि हमने इससे पहले कभी आपत्ति नहीं जताई, पर हमें तो पहले से ही मालूम था कि मैडम का जो अपॉइंटमेंट है वो ये ले जाओ, गलत है, सही बर्तन पर लगो। क्यों भाई, रोड वेज की भागा दौड़ी, धूल धूप, ऑफिस का टाइम बेटाइम कहाँ से संभलेगा? क्यों नहीं संभलेगी? भाई साइंस के मुताबिक आदमी और औरत की शारीरिक संरचना में फर्क है कि नहीं? फिर संरचना क्या बोल रहे आप? अरे संरचना गूगल कर लीजिए। अरे भाई बातों का बाजार गर्म हुआ कि नहीं अभी तक? शुक्ला जी, आपके बिना गेट टुगेदर में जान कहाँ आती है? भाभी नमस्ते। नमस्ते। कुर्सी लपकिए। हाँ ले रहा हूँ भाई। कैसे हो भाभी? हम बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा हुआ तुम आ गई, हमें तो लगा नहीं आओगी। अरे कैसे नहीं आएंगी भाभी? और वैसे भी घर में रहकर करती क्या? यहाँ रहेंगे तो कम से कम आपका हाथ बटा देंगे किचन में, है कि नहीं? और भाभी बड़ा बढ़िया बढ़िया सीख रही है आजकल रेसिपी, देखिए कुछ बनवाइए। अरे भाई बनाओ। हाँ तो क्या संरचना, क्या बात हो रही थी? संरचना पूछ रहे। बंगाली है, बंगाली है, क्या चले कि घुगनी ले आना? घुगनी? अरे सरला भाभी ने हड़कम मचाया कि नहीं अभी तक? अभी कहाँ, तुम्हारा ही वेट कर रही हूँ। नमस्ते भाभी। नमस्ते रजनी, कैसे हो? कैसी हो? बस बढ़िया। सुंदर लग रही है रजनी। लो आ गया है। हाँ। सोट वोट के लड्डू भेजे कि नहीं मम्मी ने? हाँ? अरे अभी तो टाइम है भाभी, चम्मच देना। हाँ क्या बना रहे हो भाभी? कचौड़ी का आटा गूंद रहे हैं। बड़ा मन हो रहा था मेरा खाने का। चटपटा खाने का भी मन हो रहा होगा। गर्मी ऐसी पड़ रही है, ऐसा लग रहा है रसोई एकदम भट्टी हो गई है। एक मिनट, वो एक पंखा है तो ऊपर रखा हुआ, हम अभी लगा देते हैं। पर बतिया वो कुर्सी तो ले आओ दौड़कर। ज्यादा चीटिंग मत करो, वरना आंटी को जाके कह दूंगी। जाओ कह दो, मैं भी तुम्हारे पापा को बोल दूंगा। क्या कह दोगे? कि तुम होमवर्क के बहाने वीडियो गेम खेलती हो। हाँ वो तो तुम भी करते हो। तो वीडियो गेम मेरा है। आराम से। अरे जब एमएलए साहब की अम्मा को दौरा पड़ा था तब क्या हुआ था? हाँ पंडित जी, तब वही फॉर्च्यूनर लेके उसी रोड से भाग कर गए थे, क्योंकि अस्पताल के लिए सबसे शॉर्टकट रास्ता वही है। लेकिन ये मदर का हार्ट अटैक कब हुआ था? नहीं हार्ट अटैक नहीं हुआ था, पेचिस का दौरा पड़ा था। पेचिस में दौरा पड़ने जैसा क्या है? अरे सिंह साहब, पेचिस में तो बाखूबी दौरा पड़ता है, हाथ पाँव फूल जाते हैं आदमी। अरे पेचिस माने क्या? पेचिस माने डिसेंट्री दादा। सुनो ओ शुक्ले, हमने तो नहीं सुना कि पेचिस से दौरा पड़ता हो। चप्पल पहनी हो ना? जी। क्या हुआ? अच्छा इसे ट्राई कर दीदी। हाँ ये ठीक रहेगा। अरे बाबा, भाभी पानी की बोतल किधर है? क्यों ला रही है। उधर कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्या हुआ? अरे दिखाइए। रुके मैं बर्फ लाती हूँ। ये बताइए, इतिहास तो पढ़े हैं ना आप? हाँ पढ़े हैं। अब बताइए, सम्राट अकबर की मृत्यु किस प्रकार हुई? लड़ाई वड़ाई से हुई होगी। किस प्रकार? नहीं तो
वो मृत्यु को प्राप्त हुए पेचिस के दौरे की वजह से। अरे क्या बोल रहे हैं? हाँ, सम्राट अकबर डिसेंट्री। सुनिए सुनिए सुनिए, वो पंखा नहीं चल रहा, जरा ठीक कर देंगे? अच्छा, आ रहे हैं। बताते हैं हम महल में मंदिर बना रखा था और वहीं नमाज पढ़ता था। हाँ, तो भाई जो अकबर थे वो बड़े सेकुलर थे। ये सब एमएलए जैसे थोड़ी ना थे। एक और कप देना वहां से रजनी, पर्वतिया के लिए। ये लीजिए। हाँ, थैंक यू। ये बुला ली। मछली लोगी? अभी बहुत देर हो गई दीदी, हम जाते हैं। चाय तो नहीं। पुबाली, अब तुम अपना नंबर लगा ही लो। क्यों? हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ नया बचा नहीं? 10 बच्चा पैदा कर लो। सही कह रहे हो। हमें तो अभी से डर लग रहा है। अब बच्चे को पालना बड़ा करना आजकल के टाइम में कितना मुश्किल होगा ना। अरे कितना बड़ा इमोशनल और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है ये सब अंग्रेजी में सोचना ठीक लगता है। लव मैरिज वाली हो ना तो अभी ठीक है, 4-6 साल के बाद सूनापन लगने लगेगा। जब मियाँ बीवी दोनों बूढ़े हो जाओगे तब कौन सहारा होगा? अच्छा, क्या गारंटी क्या है कि आपके ओल्ड एज में आपका बच्चा आपके साथ रहेगा? बच्चा है कि फिक्स डिपॉजिट? अरे ये नहीं कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का साथ दो और इंडिपेंडेंट भी रहो। इंडिपेंडेंट रहना अच्छी बात है, अपने हिसाब से जियो, अपनी मर्जी से जियो, लेकिन बगैर बच्चों के कैसे? हम 1 महीने से ऑफिस भी नहीं गए हैं और अब ये कह रहे हैं कि डिलीवरी के बाद तुम रिजाइन कर दो। दिन भर बच्चे में ही लगी रहोगी, ऑफिस जाने का तो वक्त ही नहीं मिलेगा। अब हमें ही देख लो ना, मंजू भाभी को देख लो, नौकरी तो छोड़ी ना। तो जरूरी है जो हमें करना पड़ा वो ये भी करे। अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ना समझ में भी आता है, पर ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि या तो बच्चों को पालो या नौकरी दो, दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं। मतलब भाई डायपर बदलना है तो वो तो हम ही को करना पड़ेगा ना, लोगों के हाथों से तो रिमोट छूट जाएंगे। मंजू लेफ्ट हो जाता है ये क्या? देख नहीं रही हो तुम क्या? बच्चे आ जा रहे हैं यहाँ पर, अंदर कमरे में रखो उनको। राहुल, अमेरिका अरे रुको यहाँ पर, चलो इस कमरे के अंदर चलो। वही मैं बोल रहा हूँ। यहाँ अंकल लोग बातें कर रहे हैं ना। डॉली, डॉली, डॉली। हाँ मम्मी। थाली लग गई है, भैया लोगों को खाना खिलाओ। 1 मिनट। बहुत खेलनी हो तुरंत आओ। अभी आगे देखो। तुम लोग हॉल में क्यों जा रहे हो? हम नहीं वो। चुप करो, जब अंकल लोग ऐसी बातें करने लगते हैं तो बीच में मत जाओ। कभी हमें देखा जाते हुए? फिर वही बात, अब जाओ ध्यान से। वो अमेरिका में जितने इंडियंस हैं ना वो सबको भगा देगा, फिर भी वही बोलोगे ना। तो ओबामा ने क्या उखाड़ लिया? हाँ, और वो क्लिंटन हुआ की बीवी क्या नाम है? हिलारी। हिलारी ऐसा क्या नया कर देती शुक्लवा? आई एग्री विद यू पंडित। हाँ, आई एग्री विद यू। ट्रम्प वही एकमात्र ऐसा आदमी है जो अमेरिका में जान लाएगा वापस। रॉन्ग फॉर अमेरिका। अरे दादा, इस हड्डियों के बलबूते कौन सा देश चलाया आज तक बताइए? मंजू, गूदा है। थालियां लगा दो। गूदा तो है। इन लोगों से थालियां लगा देते तो ये उपद्रव बचाएगा। अरे मंजू जल्दी आओ भाई।
हाँ, क्या सभी ने एक डीप ब्रेथ लिया? क्योंकि ये काफ़ी सटल तरीके से दिखाया है, पर कुछ-कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल लगा होगा, गुस्सा आया होगा। क्या हम पीपीटी बंद कर सकते हैं शुभम? Sure, sure, ताकि just हम डिस्कशन कर पाएँ सभी लोग? ओके। तो मैं सबसे यही पूछना चाहूँगी कि आपका इनिशियल रिएक्शन या फिर थॉट्स अभी क्या चल रहे हैं? किस तरीके से ये रेज़ोनेट हुआ है आपके लिए ये शॉर्ट फ़िल्म? I feel great anger when I see how these men just sit around. Definitely me as well. So much emotions, but no space to express. Ah, yes. Thank you. Yeah. Hmm. बहुत डायरेक्शनलेस गुस्सा। You're welcome सतीश जी। क्या आप शेयर करना चाहेंगे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है अभी? मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी लोगों को गुस्सा महसूस हो रहा है। कुछ-कुछ लोगों ने जिन्होंने डाला है ग्रुप चैट पे। बाकी लोगों का क्या ख़्याल है? कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस फ़र्स्ट हैंड किया है या फिर किसी के साथ होते हुए ये देखा है? धृति, यस। व्हाट अबाउट अदर्स? But women should resist soon, not take time to respond. I am married, I can feel this, but I am feeling very sorry. थैंक यू सो मच सतीश जी ओपनली ये एक्सप्रेस करने के लिए बहुत करेज लगता है ये बोलने के लिए और ये रिकग्नाइज करना कि ये हो रहा है और मैं बिल्कुल मतलब बहुत होपफुल हूँ कि आप ये जो आपको ये रिकग्नाइज हुआ है तो एक्नॉलेज होने के बाद आप काफ़ी सारे अलग-अलग छोटी वेज में आपके घर के अंदर ये चेंजेस कराएंगे इफ़ अ वुमन वांट्स शी कैन डू एनीथिंग यस डेफिनेटली शुभम I'm very lucky to be in a family and friends that don't go about doing this. That's really you're very lucky, yes. जब फैमिली गेट टुगेदर होता है तो बहू किचन में होती है और उनकी बेटियां और सास बाहर बैठकर गप्पे लड़ाती है, यस। बेटे और जमाई तो सिर्फ गप्पे लड़ाएंगे और खाना खाने आते हैं। गुस्से से ज़्यादा वेरी मच अनकंफर्टेबल हो रहा है दैट वी एज मेन हैव विटनेस्ड इट हैपनिंग यस इवन जब हम देखते हैं मूवी में यू कैन सी कि men are able to talk about politics about a very big part of our lives but women are only able to talk about what family और जबकि 2 महिलाएँ हैं जो लाती है कि हाँ, ये इकोनॉमी में, ये सिचुएशन में या फिर अभी के ज़माने में बच्चे पैदा करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। प्लस अनदर वुमन वाज़ लाइक कि आई डोंट वांट टू सेंटर माय लाइफ अराउंड चिल्ड्रन राइट नाउ, आई वांट टू एन्जॉय माय मैरिज विथ माय हस्बैंड। तो उनको कैसे शट डाउन किया जाता है कि अभी तो ठीक है, बाद में अकेलापन आ जाता है। बच्चों के बारे में ज़्यादा बात होती है। यानी कि अगर वो रेज़िस्ट भी करे, तो हम उनको ऐसा यू टर्न ले लो करा देते हैं सटली। थैंक यू फॉर शेयरिंग इवन इफ इट फील्स अनकंफर्टेबल। यस, शुभम थैंक यू फॉर बीइंग such a great supporter in the chat right now. While this is more relevant, traditional families and tier 2, 3 locations for metropolitan scenarios are changing and gender neutralization is happening. Hmm. Okay.
Doubt, it happens very subtly. Exactly, it happens very subtly. Even I'm not completely sure if I'm on the same page about that. क्योंकि being in a tier 1 city, Pune is tier 1 city, I still feel like कि ये होता है, काफ़ी बार होता है, subtly होता है। Even for the fact कि सारे जो आदमी थे घर पे, वो बाहर बैठ के ड्रिंक्स एन्जॉय कर रहे हैं और जो वो जो फीमेल लीड थी, वो पानी भर रही है कूलर में, पर उनको किचन में गर्मी हो रही है, सारी औरतें किचन में, उनको मदद चाहिए और जबकि वो बोलते हैं कि उन्हें मदद चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो भी वो डिले किया जाता है, क्योंकि डिस्कशन उनका ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। ये कितने सटली कहा जाता है ये। काफ़ी बार पॉलिटिक्स के बारे में बात करते वक़्त ऐसा महसूस कराया जाता है कि हम क्या जानते हैं, हमारे विचार अनइन्फॉर्म्ड है या घरेलू है। यस, मूवी के पहले 5-7 मिनट्स तो बाकी औरतें दिखती भी नहीं हैं। यस, और और जो जो वो एक पर्टिकुलर औरत है, महिला, जो अभी मतलब प्रेग्नेंट दिखाई गई है, उनको डायरेक्टली पूछते हैं कि आपकी मम्मी ने आपको लड्डुएँ नहीं दिए। क्यों सास भी नहीं दे सकती? या फिर वो खुद नहीं बना सकते या फिर उनके पति उनके साथ नहीं बना सकते? सॉरी, जस्ट 1 मिनट। यस। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकियों के क्या-क्या ऑब्जर्वेशंस रहे हैं मूवी के? क्या आपने वो मोमेंट ऑब्जर्व किया जहाँ पे वो छोटी लड़की को बोलते हैं कि नहीं, आप देख रहे हैं ना, ये सारी आंटियाँ तो कर रही है, आपको भी ये करना पड़ेगा, जाओ ये थालियाँ बाहर लगाओ। मतलब इतनी कम उम्र से ही वो शुरू हो जाता है, जेंडर को लेके जो रोल्स होती है फैमिली में। अम, और क्या-क्या अलग-अलग प्रकार के रेजिस्टेंस आपने देखी मूवी में? ऐसा ही नहीं है कि ये होते जा रहा था और महिलाओं ने पावर या रेजिस्टेंस नहीं दिखाया, बिल्कुल दिखाया है। किस प्रकार के रेजिस्टेंस देखे हमने? सबसे बड़ा तो वो चेयर लेके बाहर चली जाती है। She she is sitting and taking a break that she truly can whenever she wishes for. Apart from that, काफ़ी लोग काफ़ी मतलब सारे लोग काफ़ी शांत हो चुके हैं। क्या आप आपके क्या सोच रहे हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं? Will you be comfortable to share that instead of directly talking about resistance? I can understand कि ये काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक है। The one not wanting to have kids. Yes, definitely, Shubham. Yes, even I thought that the perspective that women has that sorry, society has built regarding women is in some ways flawed. Of course, the society was built uh मतलब बहुत ही ज़्यादा ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला पर्सपेक्टिव हो जाएगा मेरी तरफ से, बट सोसाइटी वाज नॉट बिल्ट कीपिंग इन माइंड द एक्सपीरियंसेस और इवन एग्जिस्टेंस ऑफ वुमेन। काफ़ी काफ़ी कम स्पेस दी गई है सोसाइटी में वुमेन के लिए। जब एक महिला दूसरी को बोल रही है कि उन्होंने जॉब छोड़ के बच्चे पैदा करने चाहिए, जैसे लीड ने किया, तो लीड रेजिस्ट करती है। यस, डेफिनेटली। I also see the girl who was playing video games upstairs बोलती है कि हाँ तो क्या हुआ, तुम सभी तो वीडियो गेम्स खेलते हो तो मैं भी खेलना चाहूंगी। वो भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस था। और
ओके एक सभी के लिए एक्चुअली मेरे पास क्वेश्चन है, मैंने जॉट डाउन किया था मूवी देखते वक्त कि क्या हमेशा पावर जो होता है वो लाउड और विजिबल ही होता है, या फिर ये मूवी देखने के बाद हमें रियलाइज हो रहा है कि कैन इट ऑल्सो बी क्वाइट, मतलब शांत और लगातार परसिस्टेंट। खुद के लिए फैन ढूंढते हैं और उससे चलाने की एक साथ कोशिश करते हैं। यस, कलेक्टिव एक्शन। दिस इज अ वेरी नाइस एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव एक्शन। दिस मेक्स मी रियली हैप्पी। और वो जो एक लास्ट में जब वो लीड बाहर चली जाती है बैठने के लिए, तो उनके साथ वो पूरे महिलाओं का झुंड बाहर जाता है। does that see do you see how that one action actually resonated with all the women who were looking at her in a particular way? For some it was inspirational, for some थोड़े से क्रिटिसिज्म वाले वे से उनको देख रहे थे, या शॉक्ड भी थे कुछ। आप रिपीट कर सकते हो क्वेश्चन? यस, तो क्वेश्चन ये था कि क्या पावर हमेशा जो शोर ज्यादा लाउड होता है, दिख के आता है, क्या वो हमें हमारे लिए हमेशा वही होगा, या अभी ये मूवी देखने के बाद हमें समझ आ रहा है कि ये एक परसिस्टेंट और क्वाइट जो चीजें होती है डे टू डे लाइव्स में, वो भी हम अभी पावर कह सकते हैं। मेरी फैमिली का स्टैंडर्ड मुझे अंधा बना दिया था कि ये सब पावर है, not normal in a society like ours. सॉरी, एक्चुअली मुझे ये समझ नहीं आया है। मेरे फैमिली का स्टैंडर्ड मुझे अंधा बना दिया था कि है। कैन यू, या एक्चुअली अनकना जी, क्या आप थोड़ा मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं हमें इसका मीनिंग क्या है? Actually, my headphones are not working, so I had to take it out in order to speak actually. ओके, तो बोलना चाहती थी कि मेरा जो फैमिली है, तो मैं हमेशा जिस तरह से वो बिहेव करते हैं एक के साथ, फैमिली फ्रेंड्स और एल्डर्स के साथ, तो मुझे ये लगता था कि ये जो कि सब एक झुल के मिलके खाना खाना, एक झुल के मिलके बैठ ठंडे ठंडे जगह में बैठना, ये सब नॉर्मल है। लाइक लड़कियों के लिए भी नॉर्मल है, आदमी के लिए भी नॉर्मल है। तो मैंने वही सोचा रखा था कि मेरे सोसाइटी में ये थोड़ा नॉर्मल है क्योंकि मेरे फैमिली के वजह से। पर आप देखने को मिल रहा है कि ये नॉट नॉर्मल है। लाइक ये हमेशा नहीं होता है, जो मेरे फैमिली की वजह से मैंने कभी नहीं देखा। तो वो ही बोल रही थी मैं। या डेफिनेटली वो एक एक्सपीरियंस तो बिल्कुल हो सकता है, बट ये काफी मतलब जैसे मैं कह रही थी कि फाउंडेशनल लेवल एक्सपीरियंसेस या फिर एग्जांपल्स हो सकते हैं। जो जेंडर रोल्स है वो इतने नुआंस्ड होते हैं कि वो हमारे लाइफ में कब आके कैसे एक्शन प्ले, मतलब एक्शंस की तरह, या फिर सोसाइटी किस तरीके से वो मोल्ड कर दे, ये हमें तक पता नहीं चलता है। तो मैं आपको वही इनवाइट करना चाहूंगी कि ये जो एग्जाम्पल है ये सिर्फ हम एग्जाम्पल की तरह देखेंगे, पर क्या हम और जो मतलब स्पेशलाइज्ड जो हमारे लाइफ में होता है, क्या हम वो लेंस को ला सकते हैं कि ठीक है, क्या अलग वे में ये मेरी लाइफ में कभी हुआ है, भले ही ये फैमिली में नहीं बट वर्क प्लेस में, फ्रेंड्स में, या फिर कोई सोशल इवेंट में, या फिर रास्ते पे चलते चलते कुछ हुआ हो। मैं सभी को इनवाइट करना चाहूंगी ये सोचने के लिए। Women's power is both loud and silent loud when fighting for rights and breaking barriers. Yes. Silent in silent in resilience and quiet determination. True strength lies in knowing when to roar and when to transform through silent perseverance. Thank you so much, Dia, for expressing yourself and showing us what you truly see here. Thank you so much. While we keep the short movie in our mind or our experiences in our mind, मैं आप सभी को अर्ज करूंगी कि क्या हम एक ऐसी महिला
के बारे में सोच सकते हैं जिन्होंने उनके लाइफ में इस प्रकार से रेजिस्टेंस दिखाया है अगेंस्ट द सोसाइटी और विद इन द सोसाइटी, और वो महिलाओं ने ऐसा क्या किया था, ये मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। हम इसके लिए चाहिए तो 1 मिनट लेंगे क्योंकि इट्स अ वेरी हैवी क्वेश्चन। Could you please repeat? Yes. So what I was asking was if you could think about a woman in your life or even yourself or anyone around you who has actually shown resistance within the society or against the society, and what kind of resistance did she show? और जो भी कोई कंफर्टेबल है, क्या वो आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि किस प्रकार का रेजिस्टेंस उन्होंने दिखाया है उनकी लाइफ में। मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रही हूँ ताकि हम वो 1 मिनट ले, थोड़ा एक पॉज ले और देखे कि हाँ, ये सिर्फ ये शॉर्ट फिल्म में नहीं बट ये हमारे आसपास भी होता है, हमारे घर में होता है, हमारे म- सहेलियों के साथ होता है, दोस्तों के साथ होता है, कलीग्स के साथ होता है, पर ये आसपास पक्का होता है। यस, शुभम। I could think of one person just now when you said it. Yeah. Go ahead if Yeah, if you could tell us how she was able to show जी resistance. बिल्कुल। तो जो ये ऑब्वियसली जो ये औरत है, वो उस टाइम अराउंड 18 to 19 years के थे जब ये बात हुई थी। उनके फादर हैड पास्ड अवे जस्ट अ मंथ अगो, और जैसे सोसाइटली उनके मदर पे काफी प्रेशर डाला जा रहा था कि इनकी शादी करवाना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ सिंस यू डोंट हैव रिस्पॉन्सिबल अडल्ट इन योर फैमिली। तो उस वजह से जब उनकी एंगेजमेंट भी तय हो गई थी बिना उनके कंसेंट के, मतलब लोग देखने आ गए उनको ऐसे लाइक मैनिकिन की तरह बैठना पड़ा उनके सामने बात करने के लिए। लाइक आई कुड विटनेस ऑल ऑफ दिस, दैट्स व्हाई मुझे पता है। और आई रिमेम्बर दिस पर्सन वाज अ ग्रेजुएट, ओके, मतलब ग्रेजुएशन हो गया था या सेकंड ईयर में थे पता नहीं, पर उनको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, आपको पढ़ना आता है क्या, लाइक आस्किंग देम टू एक्चुअली रीड इन फ्रंट ऑफ ऑल द मेन आर सिटिंग फ्रॉम द अदर साइड। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग उनका एंगेजमेंट होने वाला था, उसके पहली रात दिस पर्सन हैज लाइक फ्लीड, वो निकल गए थे, बट उन्होंने एक चिट्ठी पीछे छोड़ा था उनके माँ के लिए, बता के कि मैं एक सेफ स्पेस में जा रही हूँ, जब तक ये रिजॉल्व हो जाएगा तब तक मैं वापस आ जाऊंगी। तो वो एक एनजीओ शेल्टर को रीच आउट किया था उन्होंने, जहाँ से उन्होंने सपोर्ट लिया, और वो एनजीओ ने तभी उनको छोड़ा जब उनकी मदर हैड कम टू दिस कंसेंसस की मतलब जो ये पर्सन है उनके कंसेंट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, उनको फोर्सफुली कहीं नहीं डाल सकते। आई थिंक आई व्यू इट एज अ बिग रेजिस्टेंस ऑफ एक्ट एट अ सच अ स्टिल अ टेंडर एज, आई वुड से टीन्स में ही है फिर भी ये कर पाना। Yeah, दिस वाज अराउंड 2017-18। yeah. This is not only an act of resistance but also power to have access. उनको वो समझ थी कि हाँ, मैं एक एनजीओ को जाके I can reach out and I can get support. So that was also a very powerful move to seek support when she really needed it, right? This is truly so. It's also sad, but at the same time, the actions that this person took is so beautiful at the same time. Thank you for sharing this, Shubham. Thank you ma'am, making me like realize I actually had someone do this। Yeah, आज इतने सालों बाद मुझे आपके सवाल से याद आया। yeah. I actually wanted to say that, like, whatever she did was powerful. Can you say it? अच्छा, you want me to repeat? I would surely send this message to that person कि आज I thought of you today because I was young at that time, so मैं तो कुछ प्रोसेस नहीं कर पाया उस समय वो क्या हुआ था। Yeah. Yes, I think this woman is powerful and she Yeah. could do a
big amount of resistance against the society. Yeah. Thank you. Thank you so much for saying that. Yes. Yes, प्रीता जी, आपने अनम्यूट किया है, आपको कुछ कहना है? हाँ, मुझे अभी एक याद आया। एक इंग्लिश टीचर थी पीजी की। तो उसका हस्बैंड आईटी में काम करता था। तो वो ना मतलब वायलेंस बहुत करता था उसके साथ में। और वो थी राजस्थान की। तो उनके यहाँ तो मतलब वो सब सहन कर लेती थी, एजुकेटेड थी अच्छी, और फैमिली भी थोड़ी रिच थी अच्छे से उसकी। तो उसने 2-3 साल बहुत सहन किया। और मैं नीचे रहती थी, वो ऊपर रहती थी। तो वो बहुत मारता था, फिर भी वो सहन कर लेती थी 3 साल तक। और उसका बच्चा भी था, तो 3-4 साल का हो गया। और एक रात उसने उसके मतलब वो घर की चीजें तोड़ना, ये करना, 1 मिनट, घर के चीजें तोड़ना ये करना सब कर रहे थे। तो फिर एक रात ना उसने उसको इतना मारा उसकी वाइफ को कि वो पूरा स्वेल हो गई थी। और उस रात को उसने अपनी मम्मी को फोन किया। और वहां से उन्होंने फिर एनजीओ को पुणे के एक कांटेक्ट किया। फिर वो लेडी उसको बोला कि रात को ही घर छोड़ वगैरह। तो उसने हिम्मत करके वो घर रात को 1 बजे वो लड़की ने अपने बच्चे के साथ में घर छोड़ा। और पुणे में वो ज्यादा किसी को जानती नहीं थी, क्योंकि वो एक सिक्योर एरिया में रहती थी, क्वार्टर्स में। और वो टीचर को ही क्वार्टर्स मिला था जिसमें उसका हस्बैंड रहता था। और फिर वो जो लेडी आई, उस मतलब एनजीओ की लेडीज ने उसको फिर आके मतलब पुलिस कंप्लेंट हो गई, ये हो गया। फिर बाद में वो अपने घर चली गई, उसने ट्रांसफर ले लिया। और अभी वो अपने बच्चे के साथ में रह रही है अच्छे से। तो वो मतलब उसके पहले भी वो करता था। मतलब मैं तो उसको 3 साल से जानती थी, मेरे यहाँ आई तो। बट वो हिम्मत उसने की ना। या वो वो अभी सच मुझे में, याद आया। यस, हिम्मत दिखाना, हम्म पावर, पावर टू रीच आउट, ये सारे और जो भी और ये चीज। एजुकेटेड था, वो भी एजुकेटेड था, वो भी एजुकेटेड थी, दोनों की फैमिली रिच थी। फिर भी हम ऐसा हमेशा बोलते हैं ना कि अनएजुकेटेड पीपल करते हैं, या बस्ती के लोग करते हैं, झोपड़पट्टी के लोग करते हैं। बट ये एक अच्छे बड़े फैमिली में हो रहा था। या काफी बार एजुकेशन हमेशा हमें वो हम्म रियलाइजेशन नहीं दिलाता कि ये सारी चीजें भी अनसेफ होती है, और वायलेंस इज ऑलवेज रॉन्ग एंड इट्स आल्सो फॉरबिडन बाय द लॉ। हम्म थैंक यू सो मच स्मिता जी ये शेयर करने के लिए। तो हम देख पा रहे वेलकम। कि दो दो नरेटिव्स है यहाँ पे अभी, जहाँ पे हम पावर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। काफी बार हमें ऐसे भी लगता है अरे बेचारी, ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ। पर हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि इसमें रेजिस्टेंस था, इसमें पावर है, और हमेशा रहेगा। चैट बॉक्स में मैं देख पा रही हूँ कि ओके, दिया जी ने कहा है कि माय सिस्टर स्टूड अप अगेंस्ट सोसाइटल प्रेशर व्हेन शी चोज एन अनकन्वेंशनल करियर पाथ. Despite family opposition, her determination proved that persistence can break stereotypes. Yes. Um, I can see a very powerful move here. It feels sad that women have to reach out to external support when their own connections are against them. Yeah. This man is not educated at all. मन और बुद्धि से एजुकेटेड बनाता है। जी, अनका जी। आप शेयर कर सकते हैं। आप, मैं देख पा रही हूँ कि आपने हाथ ऊपर किया है। Hello. So, Yes. it's Ankana. सॉरी। तो मैं हमेशा जब मैं सोचती हूँ कि मेरे आसपास के बहुत सारे पावरफुल महिलाएं जो हैं, तो हमेशा मैं अपने मम्मी के बारे में सोचती रहती हूँ। कभी कभार उनको बहुत गुस्सा आता है, गैस, क्योंकि हमेशा मुझे बोलते हैं काम कर काम कर। बट
वो बहुत फिर भी बहुत पावरफुल है, क्योंकि जब मेरे पिताजी, जब मेरे पापा बाहर रहते थे, देश के बाहर, तो सिर्फ घर में सिर्फ मेरी माँ, मेरे भैया, मेरे दादा बोलते हो बंगाली में, और मैं थी सिर्फ। तो पहले उनके फैमिली के साथ बहुत प्रॉब्लम हुआ करते थे, क्योंकि पापा हमें नहीं ले जा रहे थे बाहर और उनके साथ नहीं रह रहे थे, कि मम्मी एक सिंगल मदर की तरह 10 साल बिता चुकी थी तब, प्रीटी मच। कभी कभार पापा आप आया जाता करते थे। तो घर में बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी कि एक बार दादी ने तो कुछ इंसल्ट दिया था माँ को, पापा के बारे में, या बेसिकली कि तुम सिंगल रह रही हो, कुछ तो बोला था। मम्मी ने मुझे नहीं बताया था, पर मम्मी के लिए बहुत टर्निंग पॉइंट हो गया था बेसिकली। तो वो अकेला रहने के लिए स्टार्ट कर दिया। तो हम बहुत बार अकेले रह चुके थे बेसिकली। तो सपोर्ट था, बट हमेशा नहीं जाते रहते थे, क्योंकि वो सिर्फ अकेली रहती थी, तो माँ बहुत इम्पोर्टेंट थी उसके लिए। पर फिर भी फैमिली बहुत बार बहुत भला बुरा बोलता था, लोग भी बहुत बुरा बुरा बोलते थे, क्योंकि मेरी मम्मी अकेली रह रही थी। और मम्मी ने एक बार बोला था मुझे कि लोग भी, आदमी भी हमेशा उसके हरासमेंट भी करते थे उसको, स्पेशली जब बैंक के लोग आते थे ना, तो वो देखते कि अकेली महिला ही है सिर्फ, तो कभी कभार छुआ भी करते थे। तो और मम्मी ने ये बोला था मुझे, तो मैं सोचा कि मम्मी बहुत पावरफुल है, कि एक दो छोटे बच्चे को लेकर अकेले अकेले रहना इज वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली कि मैं छोटे शहर से आई हूँ। तो उस समय बहुत मुश्किल था, अब कैसा है पता नहीं। तो उसने रेजिस्ट किया तो मम्मी ने सोसाइटी को रेजिस्ट किया, कि हरासमेंट को रेजिस्ट किया, और उसके मम्मी जी को रेजिस्ट किया कि मैं रह सकती हूँ अकेले। और हमें और मेरे भैया और मुझे खिलाया, पढ़ाया, कपड़े खिलवाए। और तो क्या, तो बहुत बहुत कुछ किया उसने। हिंदी मेरी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है, तो कभी कभार अगर हो जाए कुछ बंगाली में बोल दूंगी मैं। तो और फिर घर जो रेंट करते थे, उन्होंने वो भी बोलते थे कि मम्मी की आप कितनी देर आप अकेले ही रहेंगी बेसिकली, आपका हस्बैंड कब आने वाला है। मेरे पापा अभी तक तो नहीं आए थे। तो फिर मम्मी ने वही सही कर लिया जब तक पापा ने हमको लेके नहीं गए। फिर हम सब एक साथ रहते हैं, तो मम्मी का स्टेटस बहुत बढ़ चुका है बेसिकली, क्योंकि इंजीनियर की पत्नी बेसिकली। तो अभी उसके उस होम टाउन पे भी अभी स्टेटस है बेसिकली। तो पर स्टेटस फिर भी जिस तरह उसने रेजिस्ट किया 10 साल से, तो बहुत इंस्पायरिंग लगा मुझे। तो यही बोलना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी स्ट्रांग है, एक्चुअली बहुत स्ट्रांग है। तो जितना भी मुझे बुरा भला बोले कि ये साफ कर, वो साफ कर, वो खा दे, फिर भी आई स्टिल लव माय मॉम, बहुत स्ट्रांग है। थैंक यू। Yeah, thank you so much for sharing this Good night. openly. Yeah. मैं देख पा रही थी, मैं सुन पा रही थी कि आपकी आवाज में you were carrying pain for what your mom also went through, for what you went through in the society. And घर by herself, she was taking care, doing everything by herself. Of course, must have been extremely difficult. It's not easy at all, and I hear it even in your voice. And thank you so much ये share करने के लिए। और इतनी difficult चीजें करते करते, मतलब at times you forget that हमें 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 काफी बार हमारी सिर्फ struggles दिखाई देती है, but दूसरा साइड भी हो जाता है कि हम धीरे धीरे एक वॉरियर भी हो रहे हैं, क्योंकि इतने स्ट्रगल से हम गो थ्रू करते हैं। तो and thank you for sharing that, and thank you for carrying so much of respect for your mom. Thank you. Yashashri wanted to share similar, I think, story about her mother. I think you can Yes. take that one as a Yeah. last. हेलो मैम। Hello. Hi. सो मेरे मदर का भी सिमिलर ही स्टोरी है। मेरी मम्मी की मतलब मेरी जो दादी है, नानी है, वो भी मेरी मदर को ऐसे ही मतलब टॉन्ट्स वगैरह मारती थी कि
ऐसे कैसे कपड़े पहन रही हो, तुम्हारे एज के हिसाब से शोभा नहीं देते। और फिर क्योंकि मेरी मदर थोड़े से मॉडर्न कपड़े पहनती है और बिल्कुल हमारे जैसे ही रहती है, सब लोग बोलते हैं कि ये तुम्हारी मदर नहीं सिस्टर ही लगती है वगैरह वगैरह। और फिर मतलब थोड़े से घर के काम करना वगैरह, लाइक माय नानी इज वेरी रिजिड। तो जब भी मेरी मदर उनके घर जाती है तो ऐसे टॉन्ट सुनने को मिलते हैं कि ये कैसे कपड़े पहने हैं। और फिर उसको, मेरी मदर को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता। अ, बहुत सारी चीजें होती है कि जो मेरे मामा नहीं करते पर मेरी मदर से एक्सपेक्ट की जाती है। फिर ये भी टॉन्ट सुनने को मिलते थे कि ऐसे अकेली कैसे बाहर घूम रही हो अपने हस्बैंड को घर पे छोड़ के। और मेरी मदर बस काम के लिए ही बाहर जाती थी, फिर भी उनको ऐसे ताने सुनने को मिलते थे कि तुम आती हो फिर भी घर में पैर नहीं टिकता क्या, और बाहर ही रहती हो, ऐसे लड़कियों का और औरतों का घूमना अच्छी बात नहीं है, कैसे घूम रही हो, और बिंदी भी नहीं लगाती, दुपट्टा भी नहीं लेती। तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती है और मेरी मदर हमेशा उनसे लड़ती है, झगड़ती है, आंसर बैक करती है। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट कि हमारी मदर हमारे लिए भी स्टैंड लेती थी जब हम छोटे थे। तभी से मतलब मेरी नानी ऐसी थी कि इनको भी अ, ऐसे कपड़े पहनाओ, वैसे कपड़े पहनाओ, बिंदी लगाओ, और फिर दुपट्टा ले लो। कपड़ों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पर वो मेंटालिटी ऐसी है कि वो कंट्रोल करना चाहते हैं। और फिर भी ऐसा थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि एक औरत ही दूसरी औरत को ऐसे बोल रही है, कंट्रोल करना चाहती है। तो ये माइंडसेट भी अच्छा नहीं लगता कहीं ना कहीं। Hmm. Yeah. थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस मैम, कि कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके मदर के, और उनके सास जी ने भी जो कहा है या फिर मम्मी के साइड से भी, और जो आप जेंडर में वो हाँ। डिफरेंसेस देखते हैं कि आपके मामा को वैसे नहीं था बट मम्मी को था, ये क्यों, ये भी ऑब्जर्वेशंस। और फिर अभी आप देख पा रहे थे कि आपके लिए उन्होंने स्पेस बढ़ाई, ये एक वेरी रेस्ट्रिक्टेड सोसाइटी में आपने उन आपके लिए आपकी मम्मी ने स्पेस बनाई है। तो वो एक प्रकार का रेजिस्टेंस हम देख पा रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो रियली ग्रेट पावर। एंड जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जितने भी लोगों ने जो भी उनके रेजिस्टेंस की स्टोरी शेयर की है, ऑफ कोर्स देयर आर गुड आउटकम्स एज वेल, बट एट द सेम टाइम इसका असर हमारे मानसिक हेल्थ पे, मतलब मेंटल हेल्थ पे किस प्रकार का इफेक्ट होता है उसके बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहूँगी। आई विल डेफिनेटली रीड द comments in some time, but Shubham, can you please put up the presentation? Yeah, thank you. तो जैसे कि मैंने बात की अभी कि ऑफ कोर्स द वॉइसेस वर कैरिंग अ लॉट ऑफ पेन, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रही है, एवरीडे रेजिस्टेंस करके हमारा नियंत्रण बढ़ रहा है हमारी लाइफ पर उसी जगह हम ये भी देख पा रहे हैं कि काफ़ी बैकलैश मिलता है सोसाइटी से, थोड़े दूर हो जाते हैं अपनी खुद की फैमिली से। दूसरा हम देख पा रहे हैं कि एजुकेशन की जो हम एक्सेस के बारे में बात कर रहे थे, वो अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस दिलाता है, बट उसी के साथ एक नई जंग शुरू हो जाती है वर्क प्लेस पे। और जेंडर का जो पे गैप है, वो तो ऐसी चीज़ है कि एक सेशन काफ़ी नहीं होगा उस बारे में बात करने के लिए, बट इट स्टिल डज एग्जिस्ट ऑलमोस्ट। जहाँ तक स्टैटिस्टिक्स कहता है 17% पे गैप है अभी भी इंडिया में। हम जब अभी जो जो लास्ट एक्सपीरियंस के बारे में अभी बात कर रहे थे कि जो स्टेरियोटाइप्स होते हैं या फिर खुद की जो आइडेंटिटी वो एक्सप्रेस कर रहे थे वाया क्लोथ्स, बाय द चॉइसेस दैट शी मेड अराउंड हर, वो खुलकर कर पा रहे थे, बट उसी के साथ काफ़ी सारा मॉरल पुलिसिंग भी मिल रहा था कि अरे एक औरत होके ऐसे कैसे कर सकते हो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, पब्लिक हरासमेंट स्टिल डज एग्जिस्ट।
about 88% of women report street harassment in India. एंड व्हेन इट कम्स टू कि हमें ये दिख के आ रहा है कि डिफरेंसेस है, इनइक्वालिटी है, उस पे धीरे-धीरे काम होते जा रहा है। बट उसी के साथ सोसाइटल पॉलिसी इन्फ्लुएंस हो रही है, बट उसका दूसरा साइड ये भी है कि विमेन पॉलिटिशियंस इन इंडिया जो ऑलरेडी एक माइनॉरिटी है, वो खुद एक्सपीरियंस करते हैं 70% तक का ऑनलाइन हरासमेंट। 70% of Indian women politicians experience this. And with that being said, looking at both the sides of the coin, कि एक साइड पे हमें प्रगति दिखती है, चेंजेस दिखते हैं, बट ये प्रगति और चेंजेस जब हम करने के लिए निकलते हैं एवरी डे, वो करने से ये सारी चीज़ें भी हमें हैंडल करनी पड़ती है। और मैं चाहूँगी कि जब आप ये रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं कि आप एवरीडे ये जंग लड़ रहे हैं, तो मैं आपसे सबको अर्ज करती हूँ कि आप ये थोड़ा मोमेंट लेके रियलाइज़ कीजिए कि क्या आप आपकी मानसिक नीड्स को कैटर कर रहे हैं या नहीं? क्या आप खुद की देखभाल कर पा रहे हैं या नहीं? क्या आप खुद को ब्रेक दिला पा रहे हैं या नहीं? और इसका लॉन्गर कन्वर्सेशन आप बिल्कुल हेल्पलाइन पे भी कॉल कर सकते हैं। And they can definitely talk about this in far much more detail catered to you. Before we go to the next slide, Shubham, can we turn off the presentation? अभी ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है सेशन का, क्योंकि हमने सारी डिस्कशंस की है आज, एक दूसरी के एक्सपीरियंसेस को देखा है, शॉर्ट मूवी देखी है, अलग-अलग पावर के पर्सपेक्टिव्स देखे हैं। तो मैं आप सबको पूछना चाहूँगी कि आप ऐसी कौन-सी एक चीज़, बड़ी हो या छोटी हो, जो आप करना चाहेंगे जिससे महिलाओं पे ये रेज़िस्टेंस का बर्डन थोड़ा कम हो जाए? क्या हम ये ग्रुप चैट पे डाल सकते हैं? Freedom and independent choices. Okay. But how are you going to do that? I think that power exists with every single person. It's just that it is not shown that you have a power. So I feel like if your people around women vocalize that you are an individual with the power, like you can make choices, I think. I mean, every single person is aware of their power and choices, but at the same time, they're unaware of, do other people give me that access or not? Sometimes it just, I feel like it's a societal notion that women don't have power. But if the society starts conveying that you, you can take your space, maybe that's how I view it. Yeah, got it. मैं देख पा रही हूँ कि सतीश जी ने कहा है, सॉरी, अनका ने कहा है कि परिवार से स्टार्ट होना चाहिए, छोटी बच्चियों को सिखाना चाहिए कि वो किसी के गुलाम नहीं है और वो बहुत कुछ कर सकते हैं। पर ये आप आपके लेवल पे क्या करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ मस्ट हैव्स इन आवर सोसाइटी, पर हमारी तरफ से हम एक छोटी एक्शन क्या लेना चाहेंगे? छोटी या फिर बड़ी, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट टू टेक इट. Many women still teach young girls to endure everything. They should be taught to raise their voices from a young age. This was also shown in the video we all watched. Okay. But सतीश जी, आप क्या करना चाहेंगे इसमें? Equal behavior, balanced work, sharing all homework, what men get, that women must also get. Encouraging financial independence, either community engagement. Okay. What about others?
यशस्वी जी, श्रेया जी, किरण लता जी, प्रथमेश जी, पुष्पा जी, स्मिता जी, आप सभी लोग क्या प्रॉमिस करना चाहेंगे कि एक ऐसी कौन सी चीज़ आप अलग करने की कोशिश करेंगे आफ्टर टुडेज सेशन? मैं समझ सकती हूँ कि अभी हम क्लोजिंग टाइम के पास आ चुके हैं, तो लाइक विल ट्राई टू कंक्लूड राइट नाउ, बट अगर किसी को भी ऐसे लगता है कि आई वुड लव टू शेयर, प्लीज डू लाइक स्टॉप अस, विल मेक सम स्पेस फॉर दैट. एंड बिफोर वी कंक्लूड, आई एक्चुअली ऑल्सो वांटेड टू चेक इन कि हम सभी को कैसे लग रहा है आपके खुद के शरीर में, बॉडीली. व्हाट आर यू फीलिंग इन योर ओन बॉडी राइट नाउ आफ्टर सच अ हेवी सेशन? पॉजिटिव. Okay, Diya. I can only start with myself to follow my ways and not bother too much with what is expected of me and stand my ground. Maybe I can be a model if I follow myself. Yes. Thank you so much, Ankana ji. Feeling positive and happy. Okay. What about others? Little heavy in my chest, also lots of thoughts. Yes. Maybe I should help my mom more. Yes. To be honest, even I sort of feel heavy, but at the same time a little relieved that like this discussion resonated with people and we were able to look at similar experiences that happen around us. But that recognition also is making me feel heavy. Yeah, I can see that some of us are feeling like that. Okay. Okay. Thank you everyone. ये आपने शेयर किया अभी, and I am really grateful कि सभी ये डिस्कशन में जुड़े, ओपनली डिस्कस किया, काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने मिली, देखने मिली. Yes, thank you so much. Yeah, तो before we end, I would just take 1-2 minutes. Thank you. First of all, thank you, Divya, for such a wonderful session. I mean, the topic is in a very sensitive topic in itself, but the way you took the whole session, it was in a very deep manner, at the same time, very simplest language. I think सब लोग समझ पाए जो हम आज के सेशन का हमारा मोटो था. इसके साथ साथ या मेरे टेकअवेज ये थे कि पावर कैन बी इनविजिबल as long like until it's visible to each one of us. And yeah, that is one. And the activity that you made everyone reflect had a meaning to it. I think सभी लोग कुछ ना कुछ टेक अवे लेके जा रहे हैं आज के सेशन से. Thank you. thank you. Your takeaway was really, it summarized it very nicely. Thank you. जस्ट एक लास्ट थिंग है. अगर कोई आज नया जुड़ा है हमारे साथ, तो मैं वापस कहना चाहूँगा कि अगर जिस तरह के नरेटिव्स आप लोग बता रहे थे कि आपके एक्सपीरियंस से कैसे विमेंस को आपने देखा है स्ट्रगल करते हुए, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे हेल्पलाइन पे काफ़ी विमेन जेंडर्ड क्लाइंट्स कॉल करते हैं जहाँ पर वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं किसी ना किसी चीज़ से. तो हम काउंसलिंग से हेल्प करते हैं बिल्कुल ही, बट उसी के साथ साथ हम रेफरल्स भी करते हैं. जैसे हम शेल्टर होम्स की बात कर रहे थे, या कोई लीगल एडवाइस चाहिए या केसेस रिलेटेड डिस्कशंस करना है, तो हमारे पास एक रेफरल डेटाबेस भी होता है जिनको हमने मतलब एक तरह से उनकी इंफॉर्मेशन भी ली हुई होती है, तो हम वैसे भी हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं. और नेक्स्ट इज, अगर आप फर्स्ट टाइम आज ज्वाइन किया है, तो मैं बताना चाहूँगा कि
हमारा पूरा सर्विस हेल्पलाइन का फ्री ऑफ कॉस्ट होता है क्लाइंट्स के लिए, और हम एक डोनेशन बेस्ड एनजीओ है, तो बिल्कुल ही आप अगर डोनेट करना चाहे तो कर सकते हैं। आप हमें सेपरेटली भी रीच आउट कर सकते हैं फॉर सेम रीज़न। अभी आपके सामने एक क्यूआर है जिसके थ्रू आप डोनेट कर सकते हैं, नहीं तो मैं चैट में अभी एक लिंक डाल रहा हूँ, वो भी आप कॉपी पेस्ट करके रख सकते हैं। जहाँ पर भी आपको लग सकता है कि कोई और डोनेट कर सकता है, आप ये शेयर बिल्कुल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ दो ही चीज़ें हैं जो मुझे और बतानी है, फिर हम कंक्लूड कर सकते हैं। एक फीडबैक फॉर्म हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ, जिसके थ्रू आप आज के सेशन के लिए कोई भी फीडबैक हो, सेशन के लिए, हमारे लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फैसिलिटेटर के लिए, आप वो शेयर कर सकते हैं। ये फीडबैक फॉर्म का क्यूआर भी है, मैंने लिंक ग्रुप में भी डाला हुआ है। दैट्स इट। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो मैं वो एक लिंक भी शेयर कर रहा हूँ, आप लिंक के थ्रू भी हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, या क्यूआर है उसको भी स्कैन कर सकते हैं। और आपको लगता है अगर ऐसे सेशन से किसी और की भी मदद हो सकती है तो आप उनको व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करने बोल सकते हैं, जहाँ पर हम हमारे सेशंस के बारे में अपडेट डालते हैं। थैंक यू सो मच everyone for being patient with the things that I had to share. Thank you. Thank you once again, Divya. Thank you everybody for sharing very openly without hesitation. और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर ये सेशन का लिंक अपलोड हो जाएगा। मैं उसी के साथ साथ वापस जो मूवी था जो हमने देखा उसका भी लिंक ऐड कर दूंगा अगर आपको आगे शेयर करना है।